Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you all are fine. Student, this is your physics book, Punjab textbook physics, and we were doing chapter number 6, work and energy. So today we will discuss the word problem of this chapter. Students, as you know, all the explanation has been done related with this chapter. So today we will solve the word problem of this chapter. Our first problem is 6.1. A man has pulled a cart through 35 meter, applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. Students, in this question, force is given and distance is given. हो ये रहा है कि एक आदमी जो है वो कार्ट 35 मीटर के डिस्टेंस तक एक कार्ट को मूव कर रहा है, कितनी फोर्स लगा के 300 न्यूटन फोर्स लगा के. अब हमने मालूम करना है इसमें वर्क डन. So, students, prepare your notebook. Classwork Tuesday, 8 December 2020. Our topic is work and energy, and we are going to solve the problems which are given on page number 142, 6.1. Yes, solution. So, सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर लिख लेंगे पूरा प्रॉब्लम, उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे. 6.1 सोल्यूशन. डिस्टेंस हमें गिवन है एस इक्वल टू 35 मीटर में, एंड फोर्स इज ऑल्सो गिवन विच इज़ इक्वल टू 300 न्यूटन. एंड द क्वेश्चन इज वर्क डन, टोटल वर्क. we are going to find the total work done. So, as you know, the formula of work done is W equal to F into S, force into distance. So, we will put the values, given values. Force, the value of force is given 300 Newton, and the value of distance is given 35 meter. So, we will put the values of both variables. 300 Newton multiply 35 meter, and we will multiply 35 with 300. The answer is 10,500 joule. Work done is equal to 10,500 joule. Students, our next question is: a block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertical upward. Calculate the potential energy stored in it. Students, in this question, weight of the block is given, which is 20 Newton, and height is also given, which is 6 meter, and we are going to find the potential energy, PE. And as you know, the formula of potential energy is equal to mgh. M for mass, G for gravitational acceleration, H for height, and we also know W equal to mg. So we will put the given values. Potential energy is equal to mgh. 2 into 10 means ke W equal to mg, and the value of W is 20 Newton. So we will put 20 over here, and then we multiply it with height 6, and the answer is 120 joule, which is potential energy of the block. स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 इंटू 10 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि W इक्वल टू एम जी होता है, और W की आपको पता है वैल्यू 20 न्यूटन दी हुई है, और आपको ये भी मालूम है कि ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड होती है. तो अगर 10 जो है वो G की वैल्यू होगी तो मास की वैल्यू 2 ही होगी. तो इसलिए उन्होंने इस 20 को यहाँ पे हमने इस 20 को 2 इंटू 10 लिखा हुआ है. आप यहाँ पे 20 भी लिख सकते हैं, 20 इंटू 6 भी लिख सकते हैं यहाँ पर. 6.3. a car weighing 12 kilo Newton has speed of 20 meter per second. Find its kinetic energy. Students, here we have the value of speed v, and also we have a weight, कार्स वेट विच इज़ 12 किलो न्यूटन. मीन्स कि कार का वेट भी दिया हुआ है और हमें उसकी स्पीड भी बताई हुई है जो कि 20 मीटर पर सेकंड है, और हमने क्या मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है इस कार की.
सो व्हाट आर द गिवन वैल्यूज ऑफ 6.3? वेट दिया हुआ है कार का, वेट ऑफ द कार इज डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। हाँ, सबसे पहले हम इसे न्यूटन में चेंज कर देंगे। कैसे कि किलो मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। वैल्यू किलो न्यूटन में थी 12 किलो न्यूटन, तो जब न्यूटन में होगी तो वैल्यू हो जाएगी 12,000 न्यूटन। स्पीड ऑफ कार गिवन है, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू वी विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। क्या मालूम करना है? काइनेटिक एनर्जी अननोन है, काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करना है, जबकि डब्ल्यू दिया हुआ है वेट ऑफ द कार और स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। Students, as you know, the formula of kinetic energy is equal to half mv square or 1/2 mv square। काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए हमारे पास मास होना चाहिए और वेलोसिटी होना चाहिए, जबकि हमारे जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो उनमें हमें डब्ल्यू दिया गया है। तो अब हम जी की हमें वैल्यू मालूम है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम सबसे पहले मास मालूम करेंगे इस फार्मूले से, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, एंड देन एम इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी। हम ये वाला फार्मूला हमने इस फार्मूले से ड्राइव किया है। वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूला में, एम इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज़ एम इक्वल टू 12,000 over 10 and we get the value of mass 1200 kilogram. Now we have the value of mass and velocity, so we put the value of mass and velocity in the formula of kinetic energy, this formula। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएंगी 1/2 इंटू 1200 इंटू 20 स्क्वायर, and then we have 600 into 400 and the answer is 2,40,000। ये जाउल में दिया हुआ है तो हम इसे किलो जाउल में कन्वर्ट करेंगे। 2,40,000 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240 किलो जाउल विच इज़ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम आंसर फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन की डिमांड हो कि किलो जाउल में आंसर लिखना है जैसा कि इसमें है, तो आप इसके आंसर को 1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा किलो जाउल में which is 240 kilojoule. Our next question is a 500 gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height and kinetic energy when it hits the ground. इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है स्टोन की, और सेकंड पार्ट में हमें स्टोन की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप गिवन वैल्यूज़ लिख लेंगे 6.4 में। मास ऑफ स्टोन इक्वल टू 500 ग्राम, यू विल कन्वर्ट द मास इनटू kg, 500 डिवाइड बाय 1000, सो द आंसर इज 0.5 kg। Velocity equal to v equal to 15 meter per second. Two things are given, m and v, and we are going to find the value of potential energy and kinetic energy. And students, as you know, loss of kinetic energy equal to gain in potential energy। हम पहले पढ़ चुके हैं कि loss of kinetic energy इक्वल होता है gain in potential energy। इसमें होता क्या है कि एक form of energy दूसरी form of energy में convert हो रही है। And you know that loss of kinetic energy means half vf square। vf is the final velocity and vi is the initial velocity, so half vf square minus half mvi square equal to mgh। as velocity of stone on maximum height becomes 0, therefore vi is 0। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद उस चीज़ की वेलोसिटी ज़ीरो होती है।
So we put the value of Vi equal to 0. We are going to solve this equation. By putting the values, we get half into 0.5 into 0 square minus half into 0.5 into 15 square equal to mgh. क्योंकि यहाँ ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फुल ज़ीरो हो जाएगा. माइनस हाफ, ये बाकी वैल्यूज़ आप लिख लेंगे. 15 स्क्वायर मीन्स 225 and by solving this side of equation we get minus 56.25 equal to mgh. mgh की वैल्यू आई है minus 56.25 and as you know एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव. सो mgh इक्वल टू minus 56.25 जॉल. साथ आप एक लाइन भी ऐड करेंगे, सिंस एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 56.25 जॉल. सेकेंड पार्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, हाफ इंटू 0.5 इंटू 15 स्क्वायर. जैसा हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि 15 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा. वैल्यू पुट करेंगे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 56.25 जॉल आ जाएगा. ये काइनेटिक एनर्जी है. स्टूडेंट्स आप ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कॉपी पे करेंगे. इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड बाय टुमारो. थैंक यू.